تا واو تو، پھر تا کے ساتھ اے والی یا تے توتے، کاف کے ساتھ ای والی یا کی، چا کے ساتھ آ چا، لا کے ساتھ آ لا چالا، کاف کے ساتھ ای والی یا کی چالا کی، توتے کی چالا کی۔ عرب عین رابا، عرب میں یاد رکھے عین ہوتا ہے، عین رابا، عرب الف سے نہیں ہوگا عین سے ہوگا۔ عرب کے ایک جو لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اسے میں ایکسپلین نہیں کروں گا۔ عرب کے ایک سوداگر، سوداگر یعنی کہ تاجر، بزنس مین، سوداگر نے ایک، دیکھیں یہاں پر یہ لفظ ہی دو مرتبہ آ گیا، ایک ایک الف کے ساتھ اے والی یا کاف، ایک توتا، توتا کی سپیلنگ یاد کر لے، تا واو تا الف، یہ والی تا ہوگی توتا میں، توتا پالا تھا، تھا کے ساتھ آ، بہت باہتا بہت خوبصورت، خوبصورت، اور اچھی، آ کو چھا میں، چھا کے ساتھ ای والی اچھی، اچھی آواز والا توتا۔ سوداگر پرندوں کی، پا پر زبر ہو کر پا، را پر زیر ہے، رن دا کے ساتھ واو دو پھر نون غنہ، پرندوں کی، پرندہ یعنی برڈز، پرندوں کی بولی جانتا تھا، دیکھیں یہاں پر تھا دو مرتبہ آ گیا، یہاں پر ایک تھا اور یہاں پر پھر تھا، اور طوطے سے میٹھی میٹھی، میم کے ساتھ یا ہے می، ٹھا کے ساتھ یا تھی، میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک بار یہاں سے ریپیٹ کر لیں، عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پالا تھا، بہت خوبصورت اور اچھی آواز والا طوطا۔ سوداگر پرندوں کی بولی جانتا تھا اور طوطے سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک بار سوداگر ہندوستان، ہندوستان کی سپیلنگ یاد کر لے، ہا نون دال واو سین تا الف نون، ہندوستان، ہندوستان کے سفر، سفر کے لیے تیار ہوا، اس نے، الف پر یہاں پیش آئے گا، اس نے اپنے، آ کو پاؤں ملائیں گے، اپنا کے ساتھ والی نے، اپنے تمام نوکروں، نوکروں، نوکر کا پلورل ورڈ یہاں دیا ہوا ہے، نوکروں چاکروں، نوکروں چاکروں سے پوچھا، اس ملک، میم پر پیش آئے گا، منہ لو ملائیں گے مل، پھر کا ملا دیں گے، ملک سے، ملک یعنی کی کنٹری، ملک سے تمہارے لیے کیا تحفہ، تحفہ کی سپیلنگ یاد کر لیں، تا ہا فا چھٹی ہا، تا کے بعد کون سی تھا ڈاٹ والا، تا ہا فا چھٹی ہا، تحفہ لاؤں، سب نے اپنی اپنی پسند، پاسا نادا پسند کی چیزیں، چا یا زا یا نون غنہ، چیزیں بتائیں۔ آخر میں طوطے کی باری آئی تو اس نے کہا، مجھے، میم پر پیش آئے گا جھا کے ساتھ والی لیا، مجھے کچھ، کاف کو چھا ملائیں، کچھ منگوانا تو نہیں ہے، البتہ، البتہ یعنی ہاں مگر، البتہ میری قوم کے لوگوں کو میرا سلام پہنچا، پا ہا نون غنہ چالف، پہنچا دیجئے، دال یا جیم یا پھر یا دیجئے، اور میرا حال بتا دیجئے۔ ایک بار یہاں سے ریڈ کر لیں، ایک بار سوداگر ہندوستان کے سفر کے لیے تیار ہوا، اس نے اپنے تمام نوکروں چاکروں سے پوچھا، اس ملک سے تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں، سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائی، آخر میں طوطے کی باری آئی تو اس نے کہا، مجھے کچھ منگوانا تو نہیں ہے، البتہ میری قوم کے لوگوں کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور میرا حال بتا دیجئے۔ ان سے کہیے کہ میں پردیس، پاکرام میں دال کے ساتھ یہ ولیہ پھر سین ملا دیں گے، پردیس، پردیس یعنی کہ جو اپنا ملک نہ ہو، اپنا وطن نہ ہو، پردیس میں ہوں، اور آپ نے مجھے، میم پر پیش آئے گا جھا کے ساتھ والی جھے، مجھے بھلا دیا، قسمت، قاف پر زیر ہوگا پھر سین کو میم، قاف کو سین ملائیں گے، قسمت کو تمت، قسمت، قسمت صحیح سے پروناؤنس کرے، قاف ہوگا ہیوی والی، قسمت نے مجھے قید، اسی طریقے سے قاف ہیوی والی، قید میں ڈال دیا ہے، آپ آزاد ہیں اور باغوں کی سیر کرتے پھرتے ہیں، سیر کرتے پھرتے ہیں، دو ورڈ یہاں پر یاد کر لیں، قسمت اور قید، آزاد، باغ، غا بولے، ٹھیک ہے، باغ نہیں،
میں बाघ वैसे वो जो जानवर होता है। मैं रात दिन वतन वताना वतन की भी स्पेलिंग याद कर लें, बड़ी ता होती है। असल में इन्हीं सब की स्पेलिंग याद करने की जरूरत पड़ती है, बाकी तो मैं ने को का की है ये सब। वतन वाव ता बड़ी ता नून वतन की और आपकी याद में तड़पता 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 रहता हूँ। इस कैद दोबारा से ये वर्ड आ गया, कैद से रिहाई की कोई सूरत, सूरत में साद होगा, जैसे खूबसूरत में ऊपर में क्या था साद, उसी तरीके से यहाँ पर याद रख लें सूरत में साद, साद वाव राता सूरत हो तो मुझे, बार बार ये वर्ड आ रहा है, मुझे यहाँ पर आया है, मुझे बताइए वरना मैं यूं ही घुट घूकोटा में घुट घुट कर मर जाऊंगा। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है और आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली जब वो सफ़र करते करते हिंदुस्तान, बताया मैंने, हिंदुस्तान की सरहद, सरहद की भी स्पेलिंग याद कर ले, सीन रा हा, कौन सी हा, जीम के बाद वाली, सरहद में दाखिल, दाखिल भी सही से बोले, दाखिल खा होगा, दाखिल हुआ तो उसे तोतों का एक झुंड, झू ना डा, झुंड नजर, अब इसकी स्पेलिंग याद करने की जरूरत है, नजर में नून वा रा, कौन सी जा जो ता की बात आती है, नजर आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलामो प्याम, प्याम यानी कि मैसेज, सलामो प्याम पहुंचाया, पहुंचाया की स्पेलिंग पाहा नून चालिफ यालिफ, पहुंचाया। प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक थर थरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा, ठाकुना में ठंडा के साथ आडा, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया नहीं मर गया। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली जब वो सफ़र करते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम प्याम पहुंचाया। प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस, आकुफा में अफ सीन के साथ सो सीन मिला देंगे, अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम, पैगाम पाया गैन अलिफ में, पैगाम क्यों पहुंचाया, पैगाम यानी कि मैसेज, शायद ये तोता उस तोते का अजीज, आइन पे जबर जा के साथ अजी फिर जा मिला देंगे, अजीज, अजीज यानी कि रिलेटिव, अजीज था, इसीलिए सदमे, सदमे की भी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी कि साद से होती है सदमे की स्पेलिंग, साद दाल मीम ए वाली है, सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था, बात जो होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई, जो मैं वर्ड में यहाँ पर सर्कल करूँगा उसको लिखकर आपको प्रैक्टिस करना है। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुँचाया, शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था, बात जो होनी थी हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ काफ पर पेश आया, कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे, ताको हा में मिलाएंगे, फाके संते वाली, तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा इस सिलसिले में मुझे, सिलसिले यानी इस बारे में, सिन पर जेर आएगा, दोनों सिन पर, सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया, पाको छा में पछता के साथ आता, या के साथ आया, पछताया। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज यानी दुख, रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा, साद दाल मीम छोटिया, सदमा ये सिंगुलर है और यहाँ पर सदमे इसका प्लूरल था, सदमा उठाना पड़ा। तोते ने पूछा आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा, तोते ने पूछा। सौदागर बोला
पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामो पयाम पहुंचाया, पाहा नूंचा आ या आ, उनमें से एक तोते का बुरा हाल, हा अलिफ लाम जिम के बाद वाली हाल हो गया, उसका दिल फट गया, वो कपकपा कर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम पैगाम पहुंचाया, उनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया, उसका दिल फट गया, वो कपकपा कर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी इसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया, यानी वो भी मर गया, ठंडा पड़ गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा, यानी बहुत तकलीफ में चला गया। राको नून में रन जिम के साथ या जीदा को हमिदा, रंजीदा हुआ, दांतों से उंगलियां काट ली, रोने धोने, धा के साथ धो, ना के साथ वाली ना, धोने लगा और अपने आप को मलामत यानी कि कोसना, मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती कर दी, गलती गैन लाम ता या, गलती की। अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हरज हो जाता, क्या हरज यानी क्या हो जाता। सौदागर ने, अच्छा पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी इसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, दांतों से उंगलियां काट ली, रोने धोने लगा, इसको लिख लें, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की, अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हरज हो जाता। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे, पा नून जीम रा ए वाली, पिंजरे पा पर जेर, पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान, हा के साथ या है, रा के साथ रा नून मिला देंगे, हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। माजरा यानी कि मैटर। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक यानी लेसन दिया था कि तू अपने मीठे मीठे, ऊपर में क्या था, मीठी मीठी, यहाँ पर ए वाली लिया है तो मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपने को मुर्दा बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज देख लेते हैं। सौदागर यानी कि तिजारत करने वाला, बिजनेस करने वाला। खूबसूरत यानी अच्छी शक्ल वाला। परदेश वो मुल्क जो अपना वतन ना हो। रिहाई यानी आज़ादी। अजीज़ यानी रिश्तेदार। ठंडा हो जाना यानी मर जाना। रंज उठाना यानी सदमा बर्दाश्त करना। माजरा यानी कि वारदात। सदमा उठाना यानी गम उठाना। दिल फटना, बहुत अफसोस करना। रंजीदा यानी गमगीन। घुट घुट कर मर जाना, तकलीफ उठा उठा कर मरना। ये घुट घुट कर मर जाना ये एक मुहावरा है जो कि एग्जाम में आते हैं। फिर ये सदमा उठाना, दिल फटना, रंज उठाना, ठंडा होना, ये सब भी मुहावरा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको लिखने हैं, सोचिए, बताइए और लिखिए। सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था? तोते ने अपने दोस्तों को क्या भिजवाया था? सौदागर को किस बात पर अफसोस हुआ? तोते की चालाकी क्या थी? ऊपर यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ये जो खाली जगह है ब्लैंक से, इसमें फिल करने हैं आपको। जैसे रियाई दिया हुआ, तोहफे दिया हुआ, बोली, सूरत, थरथराकर, अजीज़, यहाँ पर फिल करने। तोते ने अपने डैश के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा? अजीज़। इस तरीके से बाकी आप सारा बनाएं। और ये बहुत ज़रूरी होमवर्क है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, मेक सेंटेंसेस। वतन, ख्वाहिश, ख्वाहिश की स्पेलिंग याद कर ले, खा वाव, जिसमें वाव साइलेंट है, लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ख्वाहिश, सबक, माजरा, सदमा, रंज। आगे यहाँ पर मुहावरा पर क्या करने के लिए कहा जा रहा है? गौर करने के लिए। इसका मीनिंग क्या है? पानी में आग लगाना, अपना उल्लू सीधा करना,
आंसू पोंछना। इन सब मुहावरे के क्या मीनिंग है आप खुद से सर्च करें, यहाँ दिमाग लगाएं। देखिए यहाँ पर मुहावरे का मीनिंग होता है कि वहाँ पर लिखा कुछ और रहता है पर उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि आस्तीन का सांप, अब ये थोड़ी मतलब है, ये मतलब होता है कि इसका कि कोई अपना हो लेकिन अंदर से दुश्मन हो, उसे हम कहते हैं आस्तीन का सांप। इसी तरीके से आगे यहाँ पर नीचे लिखे हुए मुहावरों को उस्ताद की मदद से समझिए। तो ये ठंडा होना, दिल फटना, दांतों से उंगलियां काटना आ ही चुका है सबक में। और यहाँ पर इन लफ्ज़ों के दुरुस्त इमला पर सही का निशान लगाइए। यानी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन हैं हर एक अल्फाज के, उनमें से सही स्पेलिंग क्या है, सही इमला क्या है। सही की स्पेलिंग साद हा या हा। अजीज़, अजीज़, अजीज, कौन सा सही है? तो ये सही है। उसके बाद सौदागर, सौदागर या सौदागर, तो ये सही है। सदमा, सदमा या सदमा, तो ये दूसरा वाला सही है। किस्मत, तो पहला ही वाला सही है, साद नहीं होगा और ये छोटी काफ नहीं होगी। आजाद, ये आज़ाद, आज़ाद या आज़ाद, तो ये सही है। गलती, गलती या गलती, तो ये दूसरा वाला सही है। इन 4 जुमले को क्या करना है, आपको पढ़ना है। क्या कहा गया? पढ़िए, समझिए और लिखिए। सौदागर ने तोता पाला था, तो यहाँ पर तोता लफ्ज़ पर क्या करना है, आपको गौर करना है। उसे तोतों का एक झुंड नजर आया, उसका दिल फट गया, दांतों से उंगलियां काट ली। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर नीचे? पहले जुमले में, यानी ये वाले जुमले में, ये सेंटेंस में, पहले जुमले में सौदागर और तोता वाहिद है, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जिससे एक का पता चल रहा है, यानी सिंगुलर है। जबकि दूसरे जुमले में तोतों का लफ्ज़ क्या है? जमा है, यानी कि ये प्लूरल वर्ड है। इसी तरह दिल से मुराद एक दिल, यहाँ पर दिल से मुराद मीनिंग क्या है? एक दिल। और दांतों और उंगलियां से मुराद क्या है? एक से ज्यादा दांत और एक से ज्यादा उंगलियां, तो ये क्या होंगे? ये दोनों लफ्ज़ ये जमा हो गए। वाहिद यानी कि सिंगुलर, जमा यानी कि प्लूरल। अब डिफिनेशन यहाँ पर, वाहिद वो इस्म है, यानी वो लफ्ज़ है, वो नाउन है। वाहिद वो इस्म है जो सिर्फ एक शख्स, चीज़ या जगह को जाहिर करे। सिर्फ एक शख्स, एक जगह, एक चीज़ को जाहिर करने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? वाहिद। और एक से ज़्यादा जाहिर करे तो फिर हम क्या कहेंगे? जमा। नीचे में क्या करना है आपको? नीचे लिखे हुए खानों में वाहिद की जमा और जमा की वाहिद, यानी जिसका वाहिद दिया हो उसका जमा लिखना है और जिसका जमा दिया हो उसका वाहिद लिखना है। तो तोहफा का तोहफे, परिंदों का परिंदा हो जाएगा वाहिद। सौदागर ये वाहिद है तो इसका जमा सौदागरों होगा। बाकी खुद से बनाएं आप। फिर अगला होमवर्क है, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? किसने किससे कहा? इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? ये क्या माजरा है? अब यहाँ पर बताना है कि ये सब जानवर कहाँ रहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जानवर शेर, फिर सांप, फिर यहाँ पर ये परिंदा है, उसके बाद मुर्गी और घोड़ा। अब यहाँ पर एक पोएम पढ़ लेते हैं सरसरी तौर पर रीडिंग के लिए। सारी दुनिया के मालिक, ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जगत के खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले। जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, सोच में दिल बहलाने वाले, बिपता में काम आने वाले। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। तू ही डुबोए तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। कौन है लिखने वाले इस नज़्म के? अल्ताफ़ हुसैन हाली। परजा यानी कि रिआया, जगत यानी दुनिया, नाव खेना यानी नाव चलाना, जोत यानी रोशनी, जल यानी पानी, थल यानी ज़मीन रेगिस्तान, बास यानी कि बू, महक, आस यानी उम्मीद, बिपता यानी मुसीबत परेशानी। गौर कीजिए, जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नज़र नहीं आता तो उसे हम क्या कहते हैं? आंखों से ओझल हो जाना। ये भी क्या है? एक मुहावरा है। नाव जगत के खेने वाले से मतलब है कि खुदा इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, मैनेज कर रहा है इस दुनिया को। जल और थल में खुदा की जोत होने का मतलब है दुनिया हर जगह, दुनिया में हर जगह उसी की रोशनी है। बेड़ा पार लगने का मतलब है कामयाब हो जाना। पढ़िए, समझिए और लिखिए। सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा। क्या कहा गया यहाँ पर? इधर क्या है? अल्फाज हैं, तो इधर उन अल्फाज के अपोजिट हैं और अपोजिट को उर्दू में हम कहते हैं ज़िद।
یا ایک اور کہتے ہیں ازداد، یا ایک اور کہتے ہیں متضاد. تین چیز کہتے ہیں، ضد، ازداد، متضاد، اپوزٹ لکھنے کو. ضد آپ یاد رکھیں، ضد سے ضدی یعنی کہ الٹا. تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو، ضد بنانے ہیں. جیسے تیرنا کا ضد کیا ہوگا، تو ڈبونا، ڈوبنا. اصل میں یہاں پر آپشن پر میں دیا ہوا ہے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگا. دور کا پاس، تھل کا جل. تو یہاں پر ضد بنائیں ان سب کی. ان لفظوں سے جملے بنانے ہیں آپ کو، مالک، ناؤ، بسیرا، گھر، پھول، رکھوالا. اور یہ کچھ تصویر ہیں، فگرز ہیں، ان کے آپ کو نام لکھنے ہیں. یہاں پر ایک اور نظم پڑھ لیتے ہیں. میرا پیارا وطن، میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ. میرا پیارا وطن، اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے میرا پیارا وطن. اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں. میرا پیارا وطن، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا. اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، صدا یعنی کہ ہمیشہ. میرا پیارا وطن. سیماب اکبر آباد. یاد رکھے سین سے صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، صاد سے صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز. کچھ الفاظ مانے ہیں، عظمت، بڑائی، وطن، اپنا دیس. چشمے، چشمہ کی جمع ہے، پانی کا سوتا. رواں یعنی بہتا ہوا، چلتا ہوا، جاری. وادیاں یعنی وادی کی جمع ہے، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو ہم وادی کہتے ہیں. فدا یعنی کہ قربان، رحمت یعنی مہربانی، صدا یعنی ہمیشہ. پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. لڑکا، استاد، ابا، سلطان، شیر. یہ کیسے الفاظ ہیں جن سے ایک میل شو ہو رہا ہے، ایک لڑکے کے بارے میں، ایک مرد کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. اب دوسرے الفاظ پڑھیے. لڑکی، سلطانہ، شیرنی، اماں، استانی. یہ کیسے الفاظ جس سے ایک فیمیل کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. تو جو الفاظ نر کے لیے بولے جائیں اسے ہم مذکر کہتے ہیں، اور جو الفاظ مادہ کے لیے بولے جائیں انہیں ہم مؤنث کہتے ہیں. یعنی میسکولن جنڈر کو اردو میں مذکر کہتے ہیں اور فیمنن جنڈر کو اردو میں مؤنث کہتے ہیں. بے جان چیزیں بھی مذکر اور مؤنث بولی جاتی ہے. جیسے بارش ہو رہی ہے، ہو رہی ہے تو بارش کیا ہے، مؤنث ہے. میری کتاب تو کتاب کیا ہے، مؤنث ہے. میرا قلم تو قلم کیا ہے، مذکر ہے. جیسے وطن، دریا، باغ، پھول، جنگل مذکر ہیں. عزت، دولت، جنت، نہریں اور وادیاں مؤنث ہیں. کیا کہتے ہیں ہم، میرا وطن، میری وطن نہیں کہتے ہیں. تو یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، لڑکا، ابا، سلطانہ، استاد، یہی سارے اس کو ایک کیٹیگرائز کر دیا گیا. یہاں پر آپ کے کام کیا ہے کہ اس نظم سے خانوں کے مطابق 5 الفاظ لکھنے ہیں، 5 مذکر الفاظ اور 5 مؤنث الفاظ. اور یہاں اوپر میں کچھ الفاظ ہیں جو واحد ہیں، ان کو واحد والے باکس میں لکھیں، اور جو جمع ہیں ان کو جمع والے باکس میں لکھیں. اور خوش خط لکھنا ہے، یعنی ان الفاظ کو 5-6 مرتبہ آپ کو لکھ کر پریکٹس کرنے ہیں تاکہ یہ الفاظ آپ کو آ جائے. اس میں سے بھی میں عزت، وطن اور عظمت